بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب جب ہم یہ لیگل امورل یہ تینوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز لیگل ہے, کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ امورل ہے, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان ایتھیکل مٹیریل اس کے اندر موجود ہے. سو فار دیٹ وی ہیو IEEE کوڈ آف ایتھکس. مینس ایک انٹرنیشنلی آرگنائزیشن بنا دی گئی ہے جو کہ ہمیں لاز, ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز. IEEE آرگنائزیشن ایک ایسی آرگنائزیشن بنا دی گئی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک ایکول پلیٹ فارم رکھ رہی ہے ہر جگہ پہ سافٹ ویئر انجینئرس کے لیے کہ یہ اس لا کو, اس سرٹیفکیشن کو فالو کریں گے, اس ایکشن کو فالو کریں گے, دین ہم اس سے کہیں گے کہ ان کا سافٹ ویئر, ان کی بنائی ہوئی چیز, ان کا کوڈ سب لیگل ہے, سب آتھینٹک ہے, سب جو ہے مورلی ٹرو ہے, ایتھیکل ہے. فار ایگزامپل, فار پبلک, if software engineer shall act consistently with the public interest, take care about society, take care about client, take care the public who will dealing with the software. یعنی اگر پبلکلی وہ سافٹ ویئر انجینئر کچھ ڈیلنگ کر رہا ہے, کوئی سافٹ ویئر بنا رہا ہے, تو اسے کنٹینیوسلی وہاں پہ دیکھنا ہوگا, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں جو بھی پبلک ہے اس کا خیال رکھا گیا ہو, جو بھی سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی غیر ایتھیکل, کوئی نان ایتھیکل مٹیریل اس میں موجود نہ ہو, اور جس پبلک سے جو ان کا کلائنٹ ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سب اس میں فالو ہو. اگر وہ کوئی انلیگل یا کوئی ایتھیکلی رانگ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ وہ کام خود پرفارم کر رہے ہیں, آپ نے اس سے ہیپیلی ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں, آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ ایسا کام لے آتا ہے جو کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سو آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں گائیڈ کریں, آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. ملٹیپل آف ٹائم آپ اپنی حد درجہ کوشش کریں, انہیں سمجھائیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک غلط چیز ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرے گی. آپ اس کے لیے کوشش کریں بار بار. اس کی ایک ہم مثال یہ بھی لیتے ہیں, آج کل نارملی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن بین ہوئی ہے, سو پھر اس کو کچھ عرصے, کچھ ٹائم کے لیے بین کرنے کے بعد میوچولی رائے اور انڈرسٹینڈنگ سے لوگوں سے پوچھ کے, یا جو لوگ اس میں رانگ مٹیریل اپلوڈ کر رہے ہیں انہیں سمجھ کے, ان سے ڈسکشن کر کے اس کو پارشلی جو ہے الاؤ کر دیا, یا وہ مٹیریل اس سے ریموو کر لیا, یا اس کی سکیننگ شروع کر دی. سو یہ ہوا کیوں, ایسی نوبت ہی کیوں آئی؟ کیونکہ پبلکلی وہ مٹیریل جو کہ نان ایتھیکل ہے عام ہونے لگ گیا اس اپلیکیشن پہ, تو اس کو بین کرنا پڑا. دین سیکنڈ, کلائنٹ اینڈ امپلائی. Software engineers shall act in a manner that is in the best interest of their client and employ consistent with the public interest. Clear وہی بات کہ امپلائی اور کلائنٹ کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئر نے اس مینر میں جیسا کہ اس کا انٹرسٹ ہے ویسے ہی کام کرنا ہے, بٹ لیگل, مورل اینڈ ایتھیکلی. اگر کوئی کام اس میں رانگ ہے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا ہے, انہیں بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. دین اچھا, اب یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ IEEE ایکشنز یعنی ایتھکس کے سے ریلیٹڈ ایکشنز کون کون سے لینے ہیں, یہ سب کرنا ہے. پبلک میں اس طرح کرنا ہے, کلائنٹ ہو کوئی یا کوئی امپلائی ہو کسی آرگنائزیشن کا تو اس طرح پیش آنا ہے. دین اس کے بعد اگر کوئی پروڈکٹ کی بات آتی ہے تو IEEE کیا کہتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اس پروڈکٹ کے لیے ایک سافٹ ویئر انجینئر نے انشور کرنا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے, یا کسی بھی پروڈکٹ کی اگر ماڈیفیکیشن آئی ہے تو وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہو. Highly professional standards are followed in that particular product.
Who will ensure this thing? A software engineer will ensure this thing, that the product which he is modifying is highly following standard given by IEEE. इसीलिए तो ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरी दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी चले जाएं, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड फॉलो किया हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे अगर आपने लैपटॉप लिया, डेल का लिया, HP का लिया, वही लैपटॉप आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं, कोई उसके अंदर इशू आता है, कोई डिवाइस उसके अंदर ख़राब हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उस एरिया में जाके वो आपको वहीं पे रिपेयर करके दे देंगे. अब ऐसा क्यों है? अगर आपने ख़रीदी यहाँ पाकिस्तान में है और बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको वो कंपनी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कैसे कि यही स्टैंडर्ड्स जो मुझे पाकिस्तान में मिल रहे थे वही स्टैंडर्ड मुझे वहाँ भी मिल रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो ये स्टैंडर्ड कैसे फॉलो हो रहे हैं? यही IEEE जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने तमाम इस तरह की कंपनीज को वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पे बाउंड किया हुआ है. वो कंपनीज लाइसेंस्ड और सर्टिफिकेशन तभी ले पाती हैं, तब ही रजिस्टर हो पाती हैं जब वो बनाए हुए IEEE जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए ऑथेंटिक रूल्स को फॉलो करें. अगर वो फॉलो नहीं करती तो उनके वो रजिस्ट्रेशन सब कैंसिल कर दी जाती है. नंबर 4, जजमेंट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस अपने प्रोफेशनल जजमेंट के साथ कंटिन्यू रखेगा. यानी अगर if you are a software engineer, inshallah you will be in future, then you should also observe the professional judgment. कि professionally आप अपनी सोसाइटी में उस सॉफ्टवेयर में जो कि आप बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या जजमेंट है कि ये चीज आउट ऑफ लाइसेंस जा रही है, ये चीज एथिकल रूल्स IEEE के रूल्स के खिलाफ जा रही है. सो अगर आपने ऐसी कोई चीज ऑब्जर्व की है, whether in your own organization or somewhere else, then it is your responsibility to point out that issue or that जो भी आपकी जजमेंट है, अगर वो नेगेटिविटी में जा रही है तो आपने पॉइंट आउट करना है, because that is your responsibility. Number 5, मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगेन वही बात, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अगर आप बाय हार्ट अपनी जॉब एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन वाइज एंड इंटरनेशनल वाइज, इंटरनेशनली आपने अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि यही सारे वो ट्रेड्स और ये सारे कोड ऑफ एथिक्स हैं, यही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप फॉलो करके एक सक्सेसफुल इंजीनियर, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं. So number 5 is that how you are managing your problems. For example, if you become a leader of any organization, so ethically आप किस तरह डिफरेंट चीज़ों को अप्रोच करेंगे, किस तरह आप being a leader उस ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट अप करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, आप किस तरह इथिकली अप्रोच रखेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की. आपको देखना होगा, आप लीडर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको कीप इन व्यू रखना होगा, आपको नजर में रखनी होगी तमाम प्रोजेक्ट्स. आपने मैनेज कैसे करना है, वो इथिकली आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. आपके अंडर जो भी एम्प्लॉय है, आपने उनको देखना है कि कैसे वो इथिकली डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ, एंड कैसे वो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस रख रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की, हाउ दे आर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. इफ यू are a software engineer and leader of that particular organization, then must polish your management skills, your judgment skills as well, and according to international standards. Number 6, profession. With the passage of time,
Make sure that you update yourself. कहते हैं ना जमाने के साथ जो नहीं चलता वो पीछे रह जाता है. So same वही चीज के integrity and reputation of your own self. Being a software engineer, keep continuous updating your own personality according to the public interest, according to your customers. अब अगर कोई पब्लिक आता है वो कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली मेरे चैनल को एक इतना बूस्ट दे, या मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब सॉफ्टवेयर के लिए वो एक एडवर्टाइजमेंट का काम दे. मुझे कुछ ऐसा बनाना है. अब आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको उनकी बात समझ नहीं आती, आप कहते हैं क्या चैनल, किस तरह का चैनल, मुझे तो चैनल की समझ ही नहीं है. चैनल क्या होता है? अच्छा, SEO क्या होता है? अगर कोई आके कोई कस्टमर डिमांड करता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मेरे चैनल की SEO बढ़ा दे. अब आप ऐसे ही बैठे हुए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज SEO. आपने अपने आप को विद पैसेज ऑफ टाइम अपडेट नहीं किया. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डिडंट अपडेट योर कंटेंट्स. सो try to update yourself, update your contents with respect to that field. आप जिस प्रोफेशन में जाते हैं आपने उस लिहाज से अपने आप को अपडेट रखना है. और यहाँ पे जिस तरह आप कंप्यूटर की फील्ड में आए हैं तो आपने कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली आपकी ये फील्ड अपडेट होती रहती है. न्यू एप्स इसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं. सो आपने अपने आप को बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपडेट रखना है. कोलीग्स के साथ आपका एक पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड हो, एक दूसरे के काम आना. दैट इज नंबर 7. 8 सेल्फ कंटिन्यूसली. कहते हैं ना जिंदगी जो है सीखने का नाम है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यूसली लर्निंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. Learning for your field, learning for your profession, learning for your personality, learning for your own society in a positive way. Ethical approach के साथ आपने जो भी अपनी personality को promote करना है. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने अपने आप का एक इमेज बनाना है. कहते हैं ना एक इमेज बनाना, इमेज क्रिएट करना और इन इमेज अपने इमेज को कंटिन्यू रखना, पॉजिटिव इमेज को कंटिन्यू रखना. दैट इज द हार्डफुल थिंग. बहुत मुश्किल है जो कहते हैं. सो क्यों मुश्किल है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग अपने एक इमेज को बरकरार रखना, अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक स्पेशली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए टफ टाइम है. बिकॉज यहाँ इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इमेज को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं. डिफरेंट कोई सी भी इशू की वजह से एक छोटी सी चीज वायरल हो गई, छोटी सी चीज दूसरे तक पहुंच गई, आपका इमेज डाउन हो गया. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योरसेल्फ एन एथिकल वन. एथिकल अप्रोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें. नाउ 8 principle of IEEE Code of Ethics. Previously we discussed 10 traits of professional practices, that how you will be the professional one. We have 10 traits. Then we have IEEE, different IEEE Code of Ethics, which we discuss in detail. Now 8 principles of IEEE Code of Ethics. Make sure to differentiate between all these things. Although you will find many things relevant to each other, many points are relevant to each other, but make sure to have the clear difference. आपको काफी चीजें जो हैं एक दूसरे से मिलती हुई, काफी पॉइंट्स जो हैं मिलते जुलते लगेंगे और हैं भी,
बट आपने क्या करना है, क्लियर डिफरेंस रखना है कि ये ट्रेड्स हैं, 10 ट्रेड्स हैं। फिर उसके बाद IEEE कोड्स हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हमारे पास है 8 प्रिंसिपल्स। Now what are the 8 principles of IEEE Code of Ethics? Number 1, act in public interest. यही चीज हमने बैक पे डिस्कस की, वही दोबारा आ गई। Act in interest of client and employee. Produce quality product. Maintain independent judgment. Manage ethically. Protect integrity of profession. Support colleagues. Pursue lifelong learning. ये 8 प्रिंसिपल शॉर्टली वही चीज डिफाइन कर रहे हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। So make sure that you should learn all these 8 principles of IEEE. Now I have scenario number 1. Consider, for example, you are the owner of a software engineer company. Your employees, means different engineers, want you to pay for them to attend training. How would you respond in a way that is legal, moral and ethical? अब इस सिनेरियो को, आप लीडर हैं, आपने एम्प्लॉयज को भेजना है क्योंकि आपके एम्प्लॉय चाह रहे हैं कि वो एक ट्रेनिंग अटेंड करें। अब एक लीगल तरीका क्या है उन एम्प्लॉयज का, किस तरह वो आपसे लीगली, मॉरली एंड एथिकली आपसे ये डिमांड कर सकते हैं और किस तरह आप उन्हें रिप्लाई करेंगे, ये तरीका हमने सीखना है। दिस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आपका इस तरह डिले करना, टीचर की बात जो है पेंडिंग में रखना, ये काफी नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इट मींस कि इन फ्यूचर आप इस तरह की एक्टिविटी कंटिन्यू रखोगे। अगर आज कोई इस तरह कर रहा है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकता है। सो यहाँ इस कोर्स में आपको ये सारी एक्टिविटीज देने का यही मतलब है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए, प्रोफेशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि आप जो भी एक्टिविटी हो उसे खुशदिली से परफॉर्म करें। अब तक तो आपने कुछ ये चीजें नहीं देखी थी, अब आज के लेक्चर में और कुछ लास्ट लेक्चर में आप ये जान गए होंगे कि कोई भी टास्क, कोई भी काम आपको दिया जाए तो आप किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह लीगली परफॉर्म करना है। अब इन्हीं ट्रेड्स को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को कीप इन व्यू रखते हुए आप इन सिनेरियोस के जवाब देंगे। आप इन सिनेरियो से रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हुई भी होगी आप उनके रिप्लाई देंगे। एंड आई विल ऑब्जर्व कि हाउ यू गेट दैट लेक्चर, हाउ यू बिकम द प्रोफेशनल वन। ओके, सो अब अगर बीइंग एन इंजीनियर आपने लीगल, मॉरल एंड एथिकल जवाब देना है, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने ये करना होगा, एक रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे, रिटन एप्लीकेशन अपने बॉस को देंगे, उस एप्लीकेशन के साथ एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे जहां पे आप कोर्स करने जा रहे हैं, कोर्स करना चाह रहे हैं। आप वो एडवर्टाइजमेंट, वो एप्लीकेशन, जो भी आपके बॉस के साथ एक सेक्रेटरी होते हैं या क्लर्क होते हैं, उनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन बॉस तक पहुंचाएंगे। और बॉस जो हैं, अब आपकी एप्लीकेशन बॉस तक पहुंच गई। एंड मेक श्योर कि आपने जो बात कही है, यानी जो कोर्स आप करने जा रहे हैं, जहाँ के आपने पॉइंट आउट किया है कि वहाँ पे कोर्स हो रहा है, मुझे जाना है, मुझे वो ट्रेनिंग करनी है, सो उसमें टाइम लिमिट हो। ऐसा ना हो कि आज आपने एप्लीकेशन दी और 2 दिन बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट है। मेक श्योर दैट एटलीस्ट 1 वीक का टाइम आपकी बात में हो। Make time to give time to your boss so he can think about your offer. Maybe कि सिर्फ आपने अपने लिए बात की हो, but आपके जो बॉस है, he is willing to send other employees as well. अगर आपके टाइम में 1 वीक, आपने जो आपकी बात में, आपकी एप्लीकेशन में 1 वीक का टाइम होगा, तो आपके बॉस सोचेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम लिया, जहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन लेंगे, ऑथेंटिक वे में मालूम करेंगे कि वहाँ वेदर सच ट्रेनिंग इज स्टार्टेड और नॉट। जिन्होंने
डिमांड किया है उस ट्रेनिंग का, जिस इंस्टीट्यूट का वो कह रहे हैं, तो वहां पे वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में या नहीं. सो देन ही विल बी रिप्लाइंग यू. आपका बॉस आप टाइम लेंगे, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे देन वो पॉजिटिव तरीके से लीगली एंड मॉरली आपको रिप्लाई करेंगे. इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डिमांड के यस these employees may join that training, then आपके बॉस आपको अलाउ करेंगे कि yes आप जा सकते हैं आफ्टर ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस आवर्स या वीकेंड पे या whatever, जो भी जिस तरह की सिचुएशन होगी वो आपको लीगली रिप्लाई कर देंगे उस एप्लीकेशन के जवाब में. उसी तरह आपको लेटर लिख के, एप्लीकेशन लिख के बता देंगे. सिनेरियो नंबर 2, you are the owner of software engineer company. Your employees, mean engineers, want you to let them do pro bono work for a local non-profit organization on company time. How would you respond in a way that is legal, moral and ethical? Now, again in this scenario, legal, moral and ethical reply की demand हुई है. Do let me clear you pro bono work. Pro bono work जो आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं या एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, उस जो इंसेंटिव के लिए जो काम दिए जाते हैं, खुश दिली से जो काम आप एक्सेप्ट करते हैं, that is pro bono work. जैसे अक्सर कहा जाता है कि इस वीकेंड पे रुक जाएं, आप ये काम मेरे साथ करें, आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ अटेंड करें. सो इन दैट केस आप खुश दिली से एक्सेप्ट करते हैं और बाद में आपको उसका इंसेंटिव भी दे दिया जाता है. सो आप कैसे किसी एम्प्लॉय को, किसी दूसरे इंजीनियर को, बीइंग एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें ऑर्डर करेंगे, कैसे उन्हें लीगली आप morally कहेंगे कि he can do this work? Obviously you will write a note or a letter to that particular person, और अगर कोई और डिपार्टमेंट है वहाँ के एम्प्लॉय को कहना है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दूसरा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही डिपार्टमेंट है लेकिन वो किसी दूसरे बॉस के अंडर है. सो आप उन्हें लेटर लिखेंगे और वो लेटर वहाँ पे लीगली उस पर्सन तक पहुँचेगा एंड देन वो आपका काम, अगर उनका बॉस अलाउ करे और आपको रिप्लाई में कहे कि yes he is giving you that employee to do extra work or pro bono work for your non-profitable organization, then आप वो काम, वो उस एम्प्लॉय से वो काम ले सकते हैं. एंड अगेन यही लीगल एंड मॉरल तरीका है कि एक लेटर आप लिखेंगे एंड वो लेटर जाके थ्रू प्रॉपर चैनल काम परफॉर्म. एक और चीज कि आप लेटर तो लिख रहे हैं, आप डिमांड तो कर रहे हैं, एम्प्लॉय को कह तो रहे हैं कि इस तरह वो प्रो बोनो वर्क कर ले, बट वेदर यू आर यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स, प्रोफेशनल वर्ड्स इन दैट लेटर और नॉट. इस तरह हम लोग कोई मेल, कोई लेटर लिख रहे होते हैं, देन स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है हमारा, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, विद रिस्पेक्ट, इस तरह जब हम एड्रेस कर रहे होते हैं तो दैट इज द वे. ऐसा नहीं कि ऑर्डर ये या क्वेश्चन, डू दिस, गेट आउट, परफॉर्म दिस टास्क, कम हियर एंड परफॉर्म दिस टास्क. इस तरह के ऑर्डरी स्टेटमेंट्स जो हैं नहीं होने चाहिए. एक पोलाइट एंड रिस्पेक्टिव मैनर में हमें, that is the responsibility of employees so that they can do that work humbly और एक enthusiastic way में वो काम परफॉर्म करें. ऐसा ना हो कि आपके ऑर्डरी एंड बॉसी एटीट्यूड की वजह से वो उस इदारे से दिल बर्दाश्त हो जाए और वो काम परफॉर्म ना करें. Scenario number 3, you are the head of a computer science department at a university. Your boss, a dean, want you to find a way to change your curriculum
So undergrad are more likely to choose your department for their major. How will you respond in a way that is legal, moral, and ethical? That is the scenario you normally face during your studies. Maybe till this semester, this is your third semester. So maybe आज तक आप लोगों ने भी इस तरह की सिचुएशन फेस की हो कि आपको कोई सेमेस्टर चेंज करना हो, कोई कोर्स लेना हो, कोई कोर्स ड्रॉप करना हो. So किस तरह से आप वो ड्रॉप करते हैं, किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, उस एप्लीकेशन में आपकी वर्डिंग कितनी पॉजिटिव होती है. This scenario I'm leaving on you. आप बताएंगे, आप डिस्कस करेंगे that how you are dealing with this type of situation because you are doing this. Scenario number 4. You are a software engineer working at a large publicly traded corporation where a colleague invents a new kind of compiler. Your majors see it as a huge potential case cow. How will you respond in a way that is legal, moral, and ethical? Again, the same situation. Almost the same situation. That large organization, for example, इस सिनेरियो में अब सिचुएशन ये है कि एक आपका मैनेजर है, मैनेजर को पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, जिसे कहते हैं ना कि ये एम्प्लॉय, ये जो बंदा है ना, ये सोने की चिड़िया है, इसे वो काम आते हैं जो कि 100 साल में भी मैं नहीं सीख सकता, ये 2 मिनट में कर लेता है. अब इस बंदे से कैसे काम निकलवाया जाए, कैसे इस बंदे से वो कौन सी टेक्निक यूज की जाए ताकि ये बंदा हमारे वो सारे काम कर ले और हमें कैश अर्निंग आना शुरू हो जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना शुरू हो जाए. अब किस तरह आप लीगली, मॉरली, इथिकली इस तरह के एम्प्लॉय से काम ले सकते हैं, मल्टीपल काम ले सकते हैं. अब अगेन वही सिचुएशन कि in a soft spoken words you have to write email, you have to write any application to that particular person or to the boss of that particular organization. कि being a software engineer एक large organization है तो obviously उसका departmental head भी होंगे. So आपने या आपके जो colleagues हैं, आपने उससे काम किस तरह लेना है, उनको कैश कैसे करना है. So बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आप दोस्ती में कहते हैं यार ये काम कर दो, ये कर दो, तो वो काम एक मुरव्वत में आके काम कर लेते हैं. बट एक्चुअली कैसे आप एक अपने कलीग से कह सकते हैं इन अ रिस्पेक्टिव मैनर, आप उन्हें कोई बोनस, कोई चार्जेस ऑफर कर सकते हैं कि डियर फ्रेंड आई एम योर कलीग, हैप्पीली आप विद स्माइली फेस आप उनसे कह सकते हैं आई वांट यू to be my partner, I want you to help me in that particular software and use your golden skills, I will pay you, or you may become a partner, 50-50 partnership पे आप मेरे साथ काम कर लें. और अगर आपका वो colleague जो कि एक कैश काउ यानी कि एक प्रोडक्टिव वे में काम आ सकता है, एक काम कर सकता है, तो आपने उनके काम आना है. आपने एक प्रोडक्टिव वे में आपने उनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट करनी है. अगर फॉर एग्जांपल ये कि मैं तो इतने टाइम काम करूंगा और मैं इतने रुपए में करूंगा, अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, अप्रिशिएट हिज डिमांड, खुशदिली से एक्सेप्ट करेंगे. यस क्यों नहीं, हम हमारी पार्टनरशिप होगी, आप आओ तो आप ये काम स्टार्ट तो करें, देन हमें जैसे जैसे प्रॉफिट होगा इसमें हम देख लेंगे, हम उसमें 50% तो है तुम्हारा, बाकी अगर कोई इंसेंटिव हो हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम देख लेंगे, उसके साथ शेयर कर लेंगे. यानी कि एक ओपन हार्टेडली आप उन्हें ऑफर दें
बिकॉज आपने उनसे काम करवाना है. ओके, सो इस तरह से आप उनसे एक लीगल एंड मॉरल तरीके से काम ले सकते हैं. अदर देन दैट, अगर आप एक नेगेटिव वे में उनसे काम ले रहे हैं कि बॉस को या कोई धमकी दे के आप उनसे काम निकलवाना चाह रहे हैं, आपने उनके कोई ऐसा काम किया जिससे वो डर गए हैं, उनको डरा धमका के आप कोई काम ले रहे हैं, उनके स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट द वे. वो लीगली एंड मॉरली गलत है. Scenario number 5, you are a software engineer at a company where management routinely encourages you and your colleagues to use pirated software. How will you respond in a way that is legal, moral and ethical? Again, अब आप एक ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ पे pirated software यूज हो रहे हैं, जहाँ पे pirated software से काम करके आप जो है अपने कस्टमर्स को डील कर रहे हैं. कुछ अरसे बाद उन्हीं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के लूप होल्स की वजह से आपके जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट इश्यूज लेकर आ जाते हैं कि दो हफ्तों में जो है ये सॉफ्टवेयर खराब हो गया, आप प्लीज चेक कर लें. देन आप दोबारा उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, या आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई होती है कि कुछ ही अरसे में वो खराब हो जाती है, दोबारा आपकी क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करने आते हैं कि इसको ठीक कर दें या इसमें ये मसला आ गया, इसको सॉल्व कर दें. सो ऐसा अगर कोई कंटिन्यूसली आपकी कंपनी में मैनेजमेंट जो है ये काम कर रही है, सो इस तरह के कामों को जो कि इलीगल है उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इनकरेज नहीं करना चाहिए. आप अपने मैनेजमेंट को आराम से थ्रू प्रॉपर चैनल मींस के एक लेटर के थ्रू या अपने बॉस को बताते हुए आप कह सकते हैं कि ये काम मॉरली इथिकली गलत है. लीगल अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे तो ये लॉ है या ये IEEE की स्टेटमेंट है जिसके तहत आपके ऊपर ये केस हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है. सो ऐसा मत कीजिए. अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने बहुत अक्लमंदी से और एहतियात से काम लेना है, बिकॉज इन दैट कंपनी आप खुद भी जॉब कर रहे हैं. आपका फर्ज बनता है बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको गाइड करना, उनको कहना 1 दफा 2 दफा 3 दफा उनको कहना थ्रू प्रॉपर चैनल. ये नहीं कि डायरेक्ट जाके ये काम नहीं करो, डायरेक्ट जाके आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो पायरेटेड वर्जन पे तुमने कल भी काम करवाया था, आज भी काम करवा रहे हो. ऐसा काम नहीं करना. खामोशी से थ्रू प्रॉपर चैनल आपने काम करना है. आपने अपने साथ दूसरे अपने ट्रस्टेड लोगों को शामिल करके आपने क्लेम करना है, बॉस से कहना है कि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर में हम बना रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को इश्यूज हो रहे हैं, हम लूज कर लेंगे अपने कस्टमर्स को अगर हम कंटिन्यूस इसी पायरेटेड वर्जन पे सॉफ्टवेयर्स बनाते रहे और कुछ अरसे बाद उसमें इश्यूज आते रहे तो हमारे कस्टमर्स हमारे जो है कंपनी से आइंदा नहीं बनवाएंगे, काम छोड़ के चले जाएंगे. सो आपने इस तरह क्लेम करना है. आपने कोशिश करनी है कि वो मान जाए. अगर नहीं मानते तो आपने फिर उसके बाद लीगली जो है जो लॉज हैं उनसे इन्फॉर्म करना है उन्हें कि देखो ये लॉ है, ये लॉ है. सम टाइम तो ऐसे होता है जैसे आप अभी सोच रहे होंगे आप में से काफी लोग कि हम इस तरह की बात करेंगे वो तो अगले दिन हमें फारिग कर लेंगे, वो कहेंगे तुम लीगली हमें बस सिखा रहे हो, हमें तुमसे ज्यादा पता है, जो कि हम फेस करते हैं इस सोसाइटी में. अनफॉर्चुनेटली हम कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्री कहीं किसी कंट्री को देखते हैं तो वहाँ पे ये लीगल लॉज इतने स्ट्रांग हैं कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय इस तरह की बात कर सकता है, उसे कोई डर नहीं रहता. लेकिन यहाँ पे अगर हम ये काम करने जाएं तो हमें डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, घर को कोई नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा. सो ये सारी सिचुएशन को रखते हुए आपने सॉफ्टली खामोशी से ट्रस्टेड पीपल्स को साथ रखते हुए आपने क्लेम करना है पहले उन्हें, और उस क्लेम से पहले आपने उन्हें समझाना है, हम्बली आपने समझाना है कि ऐसा काम नहीं करो, ये गलत है, पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करो सॉफ्टवेयर्स के. अगर तो वो मान जाते हैं देन गुड, अदरवाइज थ्रू प्रॉपर चैनल आपने लीगल एक्शन लेना है. Now, summary of this lecture. So far, we studied what is IT,
usage of IT in different walk of life, as we discussed this in last lecture, in the last part of this lecture. Then medium and technologies used in IT, type of computer, future of IT, professionalism. We discuss activities and tasks carried out by a professional, then traits of a good profession, IEEE Code of Ethics, and scenarios to think about software engineering. Thank you.